اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا ویڈیو ہے جماعت احمدیہ کے صدر خلیفۃ الخامس، یعنی جو خلیفہ ہیں پانچویں مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کے، وہ ریپریزنٹیٹیو جو آج کے مسیح دجال ہیں، کیونکہ مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے فرعون کی طرح، جو یہی وہ فرعون ری انکارنیٹڈ جو آپ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، جو جلندھر کے نام سے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، جو یو کے آئی لینڈ میں چاروں طرف پانی، چاروں طرف جل ہے، اور وہاں پر آپ ابھر کر اپنا آفس سنبھالے ہیں، آپ کی پروفیسی جلندھر کے نام سے آئی ہے۔ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت دعا کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ، یعنی میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ایک نشان بنا دیا تھا، وہ جو ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ جو روح تھی اس کی، وہ دوبارہ انکارنیٹ ہوئی ہے مرزا مسرور احمد صاحب کی شکل میں جلندھر۔ تو میں آپ کے لیے میرے پیارے حضور مرزا مسرور احمد صاحب، میں اصلی مسیحا مہادیو 100% ثبوتوں کے ساتھ، قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے، میرے پیارے حضور مرزا مسرور احمد صاحب، آپ بھی حاضر ہیں اس لیے حضور، اور میں بھی حاضر ہوں اس لیے حضور، شیطان بھی حاضر ہے اس لیے حضور، اور فرشتے بھی حاضر ہیں اس لیے حضور۔ تو میرے پیارے حضور مرزا مسرور احمد صاحب، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ آپ کو اور آپ کی جماعت احمدیہ کو اندھا رکھے، اور جھوٹ فریب کے اوپر آپ کی جماعت قائم رہے، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے جنم میں، جب میں عیسیٰ ابن مریم بن کر آیا تھا، تب مجھے کراس پر ڈالا گیا تھا۔ سین ہیڈرن اس کی ذمہ دار تھی، اور لوگ بھی یہودی لوگ، تو دونوں ہی مظلوم نہیں ظالم تھے، اور دونوں ہی اس بار مظلوم بھی ہیں ظالم بھی ہیں۔ دیکھیے، جماعت احمدیہ ایمان والی ہے، لیکن بے وقوف ایمان والی ہے۔ ذرا میں سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایمان والے دو قسم کے ہیں۔ ایک بہت بڑا بازار لگا ہوا ہے، وہاں پر سونے کی ایک دکان کھلنا ہے، سب لوگوں کو انتظار ہے بازار میں سونے کی دکان کا، لیکن ایک دکان پیتل کی کھل جاتی ہے تو وہ سارے بازار کے لوگ جو بہت سے گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس دکان کے اندر سونا نہیں پیتل ہے، تو وہ بھی ایمان والے ہیں۔ وہ غیر احمدی حضرات بھی ایمان والے ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پرکھا اور ایمان نہیں لائے۔ لیکن اسی بازار میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسی بازار میں کچھ ایسے کسٹمرز ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یعنی ایمان ہوتا ہے، ان کو سونا چاہیے ہی چاہیے۔ وہ گھس گئے زبردستی، غلطی سے، لوگوں کے بولنے کے باوجود دھوکے کا شکار ہو کر جماعت احمدیہ میں جو پیتل کی دکان تھی، اور انہوں نے پیتل کو خرید لیا، کیونکہ وہ کسٹمرز تو ہیں، یعنی ایمان والے تو ہیں، لیکن بازار میں لوگوں کو نکل کر بولے کہ اگر یہ سونا نہیں ہے پیتل جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر اتنی ایک ہی دکان ہے پورے بازار میں، اتنی چمک رہی ہے، اور ویسے ہی سونے کی دکانیں چھوٹی چھوٹی دوسرے بھی ہیں، لیکن وہ سونا نہیں، وہ بھی پیتل ہے لیکن سونا نظر آ رہا ہے، تو اتنی بڑی دکان کو چھوڑ کر اب کوئی دوسری دکان ہو سکتی ہے کیا؟ اور یہ بے وقوف ایمان والے بنی اسرائیلی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بن گئے شکار مسیح دجال کے، اور خود مسیح دجال بھی شکار بنا اس جھوٹ فریب کا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں مرزا مسرور احمد صاحب؟ میں محمد مودود احمد خان، اصلی مسیحا مہادیو، آپ ہی کی جماعت میں جنما، میرے ماں باپ بھی جماعت احمدیہ سے وابستہ تھے، میرے دادا پردادا بھی۔ آپ مجھے انکار نہیں کر سکتے، اس جماعت سے نکال کر نہیں پھینک سکتے، کیونکہ میں آپ ہی کی جماعت کا پھل اور پھول ہوں۔ یہ نعمت ہوں میں، یا آپ کے لیے
आप अगर समझते हैं मुझे आपके लिए बर्बादी का एक निशान हूँ या फिर आपके लिए नेमत का निशान हूँ, ये आप सोचिए। मेरे प्यारे हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, मैं चंद वीडियोस आपको बताता हूँ, जबकि आपको मालूम है खरबों रुपए में आप भी खेल रहे हैं, अपने इंडस्ट्रीज भी लगा रखे हैं, कहाँ कहाँ आपने किया है पैसे का इन्वेस्टमेंट। लेकिन मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, हुजूर, मैंने सारे वीडियोस जो बनाए उसको पूरे देखें और ये वीडियो भी पूरा देखिए। मैं उन लोगों के नाम बताता हूं आपको। सऊदी किंग सलमान, जो पूरे सऊदी अरब का इस वक्त मालिक बोल सकते हैं आप, अल्लाह ताला ने उसे बादशाह बनाया, बहुत खरबों रुपया है उसके पास। उसके सामने जाकर आप क्या ये कह सकते हैं कि मसीह दज्जाल ईसाई मिशनरीज है और वही याजूज माजूज है, यानी आयात कुबरा जो अल्लाह के नबी ने 10 दिए थे उसको आपने 9 कर दिए, ये कहकर के याजूज माजूज ही मसीह दज्जाल है और वो ईसाई मिशनरीज है? नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है। हिम्मत होगी, सबूत नहीं है, कागजात नहीं है, कुरान हदीस बाइबल तौरात वेद कुरान के, नहीं ठहर सकते आप उनके सामने। क्या आप मेरे प्यारे हुजूर ठहर सकते हैं तलाल बिन वलीद या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान के सामने, या इमाम काबा के सामने, या सुल्तान ऑफ ब्राउनी के सामने, या दुनिया के 10 अमीर तरीन दौलतमंद 100 अमीर तरीन दौलतमंद लोगों के सामने, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स शामिल हैं, अरबिया? ज़रा ये वीडियोस आप देखिए। नहीं ठहर सकते आप, मजबूर हैं, क्योंकि आपके पास असली मसीहा महादेव नहीं है और उनको इंतज़ार है असली मसीहा महादेव का, जिसके लिए वो जान और माल लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको नहीं मिला मसीहा और वो यहाँ मौजूद है आपके सामने, आपकी जमात में जन्मा, दौलत, शोहरत, ताकत और जन्नत की कुंजी बनकर, और आप जलील होकर अल्लाह को इज्जत देना चाहेंगे? बेशक अल्लाह तो इज्जत वाला है। अल्लाह ने आपको जलील कर दिया मुझे जाहिर करके। अल्लाह ने जमात अहमदिया को जलील बेवकूफ साबित कर दिया, हालांकि उनको ईमान वाला बनाया, क्योंकि मुझे जाहिर करके उसने आपको बेइज्जत कर दिया। हुजूर, अब उस बेइज्जती को लेकर क्या मेरे अल्लाह को इज्जत देंगे आप? जबकि वो अपनी इज्जत का कोई मोहताज नहीं। लेकिन कई ऐसी कौमें हैं जो कहती हैं कि अल्लाह के वादे झूठे, अल्लाह नौज़ुबिल्लाह झूठा, तो अपनी बेइज्जती की, अपनी इज्जत की कुर्बानी देकर आप उस अल्लाह को इज्जत देंगे? प्लीज, मैं हाथ जोड़ने का मतलब, इंडिया में एक रिवाज है रिक्वेस्ट का, इसके माने ये नहीं कि मैं आपको पूजा कर रहा हूँ या कुछ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हुजूर, ताकि दुनिया गवाह रहे। क्या आप जलील होकर अल्लाह ताला को इज्जत बख्शेंगे? क्या आपकी जमात जलील होकर जलालत कबूल करके, ये सच्चाई कबूल करके कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उनके खलीफा है, अल्लाह का निशान आयात कुबरा में से पहला, आप ये बेइज्जत की कुर्बानी देंगे? बोलिए हुजूर, ताकि अल्लाह की इज्जत हो उन लोगों के सामने जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह नहीं है। मेरे प्यारे हुजूर, अगर आपकी जगह मैं होता ना, तो ये निशानात देखने के बाद ये कहना तो दूर, जानो माल सब कुछ कुर्बान, बेइज्जती कबूल करके पूरे अपनी जमात अहमदिया को, जिसको मैंने सिखाया होता, अगर आपकी जगह मैं होता, पूरों को लेटर्स लिखता कि देखो
जमात खिलाफत से मत हटना। और मेरी बात सुनो, हमको अल्लाह ने इस्तेमाल किया नेगेटिव रोल के लिए, मसीह दज्जाल बना के जाहिर किया। हम मजबूर थे, हमारे पास जो सबूत थे उस सबूत की बिना पर हमें लग रहा था कि मसीह दज्जाल कोई और है, मसीहा कोई और है, मगर हकीकत में आज अल्लाह ने जाहिर कर दिया असली मसीहा को, मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान को। और अल्लाह ने इनाम किया। अब हम तौबा करते हैं और पूरी मेरे साथ मेरी जमात मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान साहब के हाथ पर, अल्लाह के मसीहा महादेव के हाथ पर बैत करके, यानी ओम महाविष्णु यानी अल्लाह पालनहार के मसीहा आखिरुज़्ज़मा ओमकार पर बैत करके हम जलालत कबूल करने तैयार है, ताकि दुनिया को पता चले वो 160 करोड़ मुसलमान जो रात दिन आपको गाली देते हैं, आपके बारे में ऊपर नीचे बदतमीजी करते हैं, आपकी जमात के बारे में, उनको कहने दो खुल के, और आप बोलो हाँ हम मसीह दज्जाल थे, मसीह दज्जाल। अब हमने तौबा कर ली है, तो देखना वो 160 करोड़ लोग गैरमंदी आपको इज्जत से सलाम करेंगे, बोलेंगे वाह अब कहा आपने, वाकई आपने जलील होकर अल्लाह के नाम की इज्जत रखी है। अल्लाहु अकबर। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, मेरे प्यारे हुजूर, मैं अल्लाह का वो निशान हूँ जिसके पास वो हिम्मत है, ठहर जाए, चाहे वो बादशाह हो सऊदी अरब का या अमेरिका का प्रेसिडेंट, ईसाई या फिर इसराइल का याहू या कोई और, सबूत 100% पक्के हैं। जहाँ मर्द हूँ मैं, जहाँ मर्द अल्लाह का। ज़रा ये वीडियोस देखिए हुजूर, फिर हम बात करते हैं। मेरे वीडियोस आप तक पहुंच ही जाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए हुजूर, उन्हें हर महीने अपने दादाजी से $15,000 मिलते। 396 अरब A340 को, यानी 84 में 1.788 कमरे, 20 लाख रुपए। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिहायशी महल है तो वो है ब्रुनाई के सुल्तान का, और ये दावा किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। 17 मंजिलों के इस महल में 1788 कमरे, 257 वॉशरूम्स, एक मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल्स, 110 गाड़ियों का गैराज, एक बैंक्वेट हॉल और 18 लिफ्ट्स हैं। इस पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट बल्ब लगाए गए हैं। ये महल 1984 में $1.4 बिलियन में तामीर किया गया था, जिसकी आज कीमत $5 बिलियन से भी तजावुज कर चुकी है, यानी 8,000 अरब रुपए। फ्लाइंग पैलेस, ये नाम दिया गया है ब्रुनाई के सुल्तान के एयरबस A340 को, यानी उड़ने वाला महल। और वाकई ये नाम ना हो तो और क्या हो, ये हवाई जहाज वाकई एक उड़ने वाला महल ही है। इस पूरे हवाई जहाज में आराम। आपने देखा हुजूर, ये हैं किंग सलमान साहब। वह ऐसी लेविश लाइफ जीते हैं जिसे जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। लाइफ तो छोड़िए, अभी हाल ही में वह इंडोनेशिया और सोने की सीढ़ियों से, सोने के घरों से लेकर विलासितापूर्ण, करीबन 81 साल के हैं। उनका जन्म 31 दिसंबर 1935 को। सलमान बिन बारे में जानने के बाद आपको हैरत तो जरूर होगी। तेलों के भंडार के मालिक सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद करीबन $15 बिलियन खर्च किए हैं। 24 कैरेट गोल्ड मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े होते हैं। दुबई की पुलिस में खैलाइफ जीत सकते हैं। एक बार पुलिस के लिए कार सुधरा सकते हैं। उनके पास 14 करोड़ रुपए की आस्टिन मार्टिन 177 है और लगभग 12 करोड़ रुपए की बुगाटी रुपए का गोल्ड कप किक मिलता है। यूएई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके 6 वाइफ से 30 बच्चे हैं। इतनी बड़ी फैमिली के ट्रैवल करने के लिए एक प्लेन काफ़ी होता, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के पास 40 प्लेन्स हैं, और ये प्लेन्स कोई आम प्लेन्स नहीं है। उसी तरीके से आप देखिए हुजूर, मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, आपको तो ये सब कुछ मालूम होगा, आप डेली बैठकर देखते होंगे या कभी कभी, और ये कहते होंगे कि भाई ये तो दुनिया की दौलत है, हमारी दौलत तो ईमान की है। हमारे भी 17,000 से 18,000 सेंटर्स हैं, यानी मस्जिदों की शक्ल में। जहाँ आपकी मस्जिद होती है जमात अहमदिया का, वहाँ आपका सेंटर भी तो होता है।
तो आप ये बोलेंगे कि हम तो ईमान का सौदा करते हैं आखिरत का, लेकिन क्या आप इन लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? इन लोगों को बोल सकेंगे कि दाबतुल मिनल अर्ज़, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही नहीं दिए, बल्कि चूहे के जरासीम है, बबोनिक प्लेग? बोल सकते हैं? सबूत बोल तो सकेंगे, 100% सबूत चाहिए। एक आयत को नाम तब्दील करके, काटेगा करके, बात करेगा वो काटेगा करके, एक हदीस को लेकर के वो काटेगा, बाकी सारे हदीसों को छोड़कर अपना पल्ला नीचे करके आप सामने नहीं ठहर पाएंगे। क्या आप के पास ये सबूत है? नहीं है, मजबूर हैं आप, क्योंकि जमात अहमदिया जाहिर हो चुकी है कि वो मसीह दज्जाल की जमात है। आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये बुनियाद इसकी अल्लाह ने रखी है। अल्लाह ने चांस दिया शैतान को कि वो अपना मसीहा पेश करे, ताकि अल्लाह की नेगेटिव जो आयात हैं वो जाहिर हो। आप भी रोल पर हैं, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन करूँ क्या? हक़ तो बयान करना ही है, जहाद अकबर है ये मेरा। आप खलीफा तो हैं जमात अहमदिया के, सारे ईमान वालों की खिलाफत अल्लाह ताला ने 1924 में ख़त्म कर दी। अब छोड़ दिया उन लोगों को, फ़िरक़ों को खुला आज़ाद बग़ैर इमाम के, और उनमें से आजमाइश के लिए आपको छोड़ दिया कि चुन लो जितने चुन सकते हो। आपने जितने हो सके चुन लिए, जमात को खड़ा कर दिया पहाड़ को, और आपका हाथ इस पहाड़ के नीचे आ गया, क्योंकि मैंने पैर जो रख दिया है शिव भगवान मसीह महादेव। अब आपको बोलना होगा, रावण स्तोत्र जो कहते हैं ना, वो अब आपको पढ़ना होगा, मतलब आपको मेरा साथ देना होगा। मेरे प्यारे हुजूर और सारे जमात अहमदिया के अहदेदारान, जान लुटाए, माल लुटाए, सब कुछ, लेकिन अल्लाह ने आपको भी मजलूम बना दिया। बेवकूफ़ ईमान वाले ज़रूर हैं, ईमान वाले ज़रूर हैं, क्योंकि जो दूसरे गैर अहमदी लोग हैं उनके पास अहमियत है मसीह आने की, लेकिन जितनी अहमियत और इल्म अल्लाह आपको दिया है दुनिया में किसी को नहीं दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने वो नेमतें बनी इसराइल को दी जो किसी और को नहीं, और मैं सबसे बड़ी नेमत आपके सामने खड़ा हूँ, आप ही की जमात में जन्मा। मेरे प्यारे हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, बुरा मत मानिए, क्या आप ये कहेंगे इनके सामने कि याजूज माजूज ही मसीह दज्जाल है, और मसीह दज्जाल ही याजूज माजूज है? अल्लाह के नबी ने जो 10 आयात कुबरा दी थी, 10 बड़ी निशानियाँ क़यामत की, वो हकीकत में 9 है, क्योंकि उसमें से याजूज माजूज को दोबारा अल्लाह के नबी ने नौज़ुबिल्लाह गलती से मसीह दज्जाल के नाम से बयान किया। ये बोल सकते हैं? है हिम्मत? या ये बोलना होगा आपको कि असल मसीहा महादेव मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान ज़ाहिर हुए हैं। हमारी जमात में अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, हमको अब दर्द भी उसी ने दिया था और दवा भी उसी ने दे दी, और हम कबूल करते हैं कि मसीह दज्जाल हैं, और वाकई में हम शैतान के एजेंट्स बने हुए थे। अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमारी इज़्ज़त की कुर्बानी कबूल कर, क्योंकि ये इज़्ज़त भी तेरी दी हुई थी। अब ये मत कहना मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब और जमात अहमदिया के अहदेदारान, ये मत कहना कि हमारी बहुत इज्जत हो रही है, बहुत आवभगत हो रही है। कहाँ कहाँ हमारी जमात पहुँच गई, 208 कंट्रीज़ में। अल्लाह हमको तरक्की क्यों दे रहा है? क्योंकि आप मसीह दज्जाल हो। रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 पढ़ लो, हर ट्राइब में, हर कौम में बोलोगे, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन क्या आप आज सऊदी गवर्नमेंट के सामने सीना तान के
कुरान पाक और हदीसों को लेकर चैलेंज कर सकते हैं उनको? मौत और जिंदगी का खेल नहीं कर सकते हुजूर, क्योंकि आपके पास मसीह दज्जाल असली नहीं है, आपके पास दाबतुल मिनल अर्ज़ असली नहीं है, आपके पास याजूज माजूज असली नहीं है, अंग्रेज रशिया अमेरिका नहीं है, याजूज माजूज चाइनीज ज़ाहिर हो गए हैं। कोविड-19 वायरस और 40 दिन का लॉकडाउन इंडिया में, ईसा इब्न मरियम का तूर पर जाना, यानी तूर पर कितने दिन के लिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम? 40 दिन का लॉकडाउन फर्स्ट फेज बगैर कोई राहत के 24 मार्च से 2020 3 मई तक के नहीं है आपके पास। उसके बाद वुहान में बारिश वो नहीं है आपके पास, जो पिछले 60 सालों में नहीं हुई। यानी आप मजबूर हैं हुजूर, माफी चाहता हूं हुजूर। झूठ फरेब एक हिजड़ा होता है, झूठ और फरेब एक हिजड़ा होता है। हिजड़े का मिसाल दे रहा हूं, और हिजड़ा अगर दुनिया की हसीन तरीन मोमिन औरत से अख्त कर ले जो कि नाजायज हराम है, तो उससे हम बिस्तरी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकता हुजूर। हिजड़ा चाहे कितना ही ताकतवर बन जाए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 बच्चों से ज़्यादा का बाप हो चुका हूँ, जिसमें बाहयात बच्चे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह के फजल व करम से 9 बीवियों का शौहर रह चुका हूँ, जहाँ मर्द हूँ। मेरे ऊपर ये बात मत करना, क्योंकि मैं क्लीन शेव और मेरा हुलिया ऐसे ही रहेगा कल की अवतार का। क्या दुनिया में आप देखते नहीं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स क्लीन शेव हैं, सब कुछ है, तो क्या वो हिजड़े होते हैं? नहीं, मेरी शबात ऐसी रहेगी, नबी की तरह नहीं होगी। लिखा है हदीस शरीफ में, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बशारत दी है। तो मेरे बारे में मत कहना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके झूठ फरेब को कह रहा हूँ हिजड़ा। माफ़ी चाहता हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए हुजूर, क्योंकि मैं बहुत ही अदब से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। हिजड़ा झूठ चाहे कितना ही ताकतवर मर्द ना बन जाए, या मर्द ही बन जाए ताकतवर, हिजड़ा हुजूर, हुजूर अगर झूठ हिजड़ा, झूठ जो कि हिजड़ा है, चाहे कितना ही ताकतवर मर्द बन जाए और हसीन तरीन खूबसूरत महजबीन दोशीज़ा से, दुनिया की शहजादी से अख्द कर ले, तो वो उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करके बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वैसा ही है आपके पास आपका ईमान, आपका धोखा, आपका फरेब, आपका झूठ, जो सिर्फ चंद ईमान के बेवकूफ़ ईमान वालों को तो खुश कर सकता है, लेकिन हकीकत में जो दूसरे ईमान वाले हैं, जो अक्लमंद और जो भटक रहे हैं इधर उधर, उनको कन्विंस कभी नहीं कर सकता। किस मुंह से ठहरेंगे हुजूर आप सऊदी किंग सलमान के सामने, या उनके बेटे मोहम्मद सलमान के सामने, उनकी पूरी फौज के सामने, सुल्तान ऑफ ब्राउनी के सामने, दुबई एमिरेट्स के शहजादों के सामने, वहाँ के हुक्मरानों के सामने, वहाँ की पुलिस के सामने, सऊदी अरब की पुलिस मिलिट्री के सामने, पाकिस्तान के सामने, इमरान खान के सामने, और पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बड़े बड़े मुजद्दिद मुजाहिदों के सामने आपकी जमात के चंद लोग किस अंदाज से ठहर सकते हैं? ठहर ही नहीं सकते, नहीं ठहर सकते। क्यों? क्योंकि वो अटैक करेंगे, वो मार देंगे, वो हमला करेंगे। क्यों? वो मुस्लिम नहीं है, वो ईमान वाले नहीं है क्या? है, मगर उन्होंने एक चीज देख ली, ना तो ईसाई मिशनरीज मसीह दज्जाल हैं, ना तो मसीह दज्जाल ही याजूज माजूज है, ना तो दाबतुल मिनल अर्ज़ जो आपने कहा, जो कि ताउन के कीड़े
बुबोनिक प्लेग नहीं है। उन्होंने देख लिया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि वो निशानात जो कि मोहरबंद थे, जिसे खुद गैर अहमदी भी नहीं समझ सके, अल्लाह ने उनको भी अंधा रखा, मजबूर रखा दूसरे अंदाज से। उनको वो निशान नहीं मिला जो उनको मुतमईन कर सके कुरान हदीसों से, ना वो वक्त उनको मिला। आज आप मजबूर हैं हुजूर, आपको इज्जत तो देंगे ये बेवकूफ़ ईमान वाले बने इसराइलियों को जो आपने जमा किया है अपनी जमात में, आपकी आओ भगत तो करेंगे। वो मुशरिकीन, वो जाहिलून, हर कौम से आपकी आओ भगत तो होगी, लेकिन हुजूर क्या आप में हिम्मत है कि आप मसीह दज्जाल को 100% पेश कर सकते हैं, जो कि नबवत का दावा करेगा, जो कि मसीह मेहदी होने का दावा करेगा, जो मर जाने के बाद उसकी जगह दूसरा उसका खलीफा उसका काम पूरा करेगा, फर्स्ट 20 सेकंड 20, उसके 2 हौंस मिर्ज़ा नासिर अहमद और मिर्ज़ा ताहिर अहमद, फिर उसके नाम की आदात 666, क्या आप पेश कर सकते हैं? नहीं, मजबूर है हुजूर। मैं तो आपके लिए साहिब दौलत हूँ, मैं तो आपके लिए शोहरत हूँ, मैं तो आपके लिए इज्जत की चाबी हूँ, इज्जत का दरवाज़ा, जन्नत का दरवाज़ा हूँ। हुजूर, अगर मैं आपको और आपकी जमात के अहदेदारान को ये कह रहा हूँ कि इज्जत पाओ, सर उठा के जियो, कहो कि हम जलील होकर अल्लाह के नाम की इज्जत रखे हैं, तो रखे नहीं, अल्लाह तो अपने नाम की इज्जत वैसे भी रख दिया। सिर्फ आपको जैसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना है, ये वो सच की गंगा बह रही है, इसमें आप भी अपने हाथ धोकर पाक हो जाइए और बोलिए कि हमने जो आज तक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को अलैहिस्सलाम करते आए, वो मसीह दज्जाल निकले और उनका खलीफा भी मसीह दज्जाल निकला, और हम तौबा करते हैं या अल्लाह, हम जलील होते हैं तेरे रास्ते में ताकि तेरे नाम की इज्जत हो। मौला जलील हो जाओ मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, ये ज़िल्लत बर्दाश्त आपको करनी होगी अल्लाह को अगर आपको इज्जत देना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, जमात अहमदिया, जलील हो जाओ अल्लाह के रास्ते में। वैसे तो अल्लाह ने जलील कर दिया है जमात अहमदिया को, मगर अब कबूल करके ऑफिशियली बोलो कि अल्लाह ने हमें जलील किया, अब अल्लाह हमको इज्जत भी बख्शेगा, क्योंकि जिसको वो जिल्लत कर देता है, जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। अब हम मसीहा महादेव के साथ होकर इज्जत पाना चाहते हैं या अल्लाह, इस दुनिया में भी आखिरत में। मेरे प्यारे हुजूर, ये सोना, ये चांदी, ये दौलत के अंबार जो आपने देखे हैं, ये बड़े बड़े जो खरबपति लोग हैं, अगर अल्लाह मुझे पहले एडवांस में दे देता तो मुझे वो कंसंट्रेशन से वो राज, पहले तो मेरा मसीहा महादेव होना ज़रूरी था ये राज निकालने के लिए, और वो कुरान हदीस के वो राज, वो सील्ड प्रोफेसीज का इल्म मुझे न मिलता, क्योंकि मैं ये दौलत शोहरत इसमें मैं गुमराह हो जाता। अल्लाह ताला जो करता है वो सच करता है, उसके नामों में जालिम नहीं है, उसके नामों में कंजूस नहीं है, वो गनी है और वो बेनियाज है, उसके हाथ बहुत बड़े। मैं अल्लाह को बोलता था, अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा परवरदिगार, मुझे दौलत ताकतें चाहिए, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, हर काम उसकी मर्जी से होता है, मैं उसकी मर्जी से जाहिर हुआ हूँ, मेरी दुआओं से नहीं। जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं मसीहा हूँ, महादेव हूँ, तब अल्लाह ताला मुझे जाहिर किया, मुझे लेकर गया सफ़ेद मीनारा, मुझे वहाँ पर जाहिर किया, तो सब उसी ने किया ना, मेरे माँ बाप का नाम रखा, तो मैं अब क्या अल्लाह को सिखाने चला? नहीं नहीं, मैं अपने गुस्ताखियों के अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। वो रहीम है, वो आला है, तो रहमान है। मेरे प्यारे हुजूर, बोलिए, अल्लाह मांग रहा है मेरे ज़रिए आपसे,
اپنے عزت کی قربانی ذلیل ہونا ہے اللہ کے راستے میں، آپ بولیں گے ہم جان و مال قربان کرنے تیار ہیں، میں تو وہ تو لے ہی لوں گا انشاءاللہ۔ آپ کی مجھے عزت چاہیے، آپ کی ذلت چاہیے، آپ کے منہ سے اقرار چاہیے۔ اگر میں ایک ایک احمدی کو سکھانے بیٹھوں تو کتنے احمدیز ہیں جو آپ کے اس دھوکے کا شکار ہیں، خود بھی اندھے ہیں، آپ کو بھی اندھا بنائے ہوئے، اور آپ بھی اندھے اور وہ بھی اندھے۔ میں صرف مین ٹارگٹ خلیفۃ المسیح، جس کو آپ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح دجال، مرزا مسرور احمد صاحب 5th خلیفہ کو میں اپروچ کر رہا ہوں، مین ٹارگٹ کو، مین واٹر سپلائی کا سورس کو میں جماعت احمدیہ کے اپروچ کر رہا ہوں۔ آج کے فرعون کے پاس میرا اپروچ ہو رہا ہے، اے آج کے فرعون، مرتے وقت پچھلے جنم میں آپ نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، تو اب ایمان لاتا ہے جبکہ ہمارا فیصلہ ہو چکا۔ وہ آیت کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کو اس بار مجھے سرنڈر کرنا ہوگا۔ اب آپ بولیں گے یہ پنرجنم کا مسئلہ، روحانی پنرجنم، یہ قصہ جھگڑے میں مت پڑیے، یہ پروف ہو چکا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم روحانی دوبارہ جنم لے کر آ گیا ہوں۔ اب آپ بولیں گے نہیں، روحانی کا مطلب ویسا ہی نہیں، روح ہے تو روحانی ہے، روح نہیں تو روحانی کس بات کا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا تو ثابت ہو گیا نا میرے پیارے حضور مرزا مسرور احمد صاحب، جھوٹ ایک ایسا ہجڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مرد بن کر جھوٹ فریب ایک حسین خوبصورت عورت سے جائز نکاح کر لوگوں کو دھوکہ دے کر اگر اس کے پاس چلا جائے تو اس سے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ حضور، یہ جہاں مرد محمد مودود احمد خان آخر الزمان مسیحا بول رہا ہے، میرا سکھانے والا میرا اللہ ہے، میں کسی کی کاپی نہیں کر رہا۔ جھوٹ چاہے کتنا ہی بڑا مرد بن جائے یا مرد بن کر نظر آئے، وہ حسیناؤں سے مل کر بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ حضور، اسی طریقے سے آپ اور آپ کی جماعت جھوٹ اور فریب پر قائم ہے، سب مل کر بھی ساری انبار کتابوں کے لے کر بھی آپ جماعت احمدیہ پوری مل کر بھی سعودی کنگ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نہیں ٹھہر سکتے ان شہزادوں کے پاس، ان بڑے بڑے کھرب پتیوں کے پاس، وہ عیسائیوں کے پاس جو ویٹیکن سٹی کے پوپ کے پاس، آپ نہیں ٹھہر سکتے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس۔ آپ صرف ان کو لو فار آل ہیومینٹی کر کے، لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کر کے آپ باتوں کے جالسازوں کو جالسازی سے پھنسا سکتے ہیں، لیکن اس ایمان کے معاملے میں آپ ان کو نہیں خرید سکتے، کسی قیمت پہ بھی نہیں خرید پائے، ثبوت ثابت ہو گیا۔ حضور، یہ جو جماعت احمدیہ ہے، اس کے اندر ڈسپلینڈ آرگنائزیشن، اس کے اندر مبلغین، اس کے اندر اصلی مسیحا کے چاہنے والے، وہ میرا اوزار ہے، وہ آپ کی پوری جماعت، آپ کی لائبریریز، یونیورسٹیز میرا اوزار ہے، مجھے دیجیے۔ سیکیورٹی سسٹمز، یہ ساری دولت میری ہے، یہ مسلمانوں کا خزانہ ہے، یہ مجھے دیجیے، کیونکہ اس کا حقدار میں ہوں، اور میری آل اولاد اہل بیت، یاد رکھیے رہتی دنیا تک انشاءاللہ میں اور میری اہل بیت ہی خلافت پہ رہے گی انشاءاللہ۔ میں نے اللہ سے دعا کر دی ہے، کوئی چیلنج میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے دعا کرنے کے بعد کر رہا ہوں۔ کسی قیمت پر بھی اہل بیت کو اب آپ نیچے نہیں گرا پائیں گے۔ حضور،
यहाँ तक कि मेरे बेटियों के साथ भी जो लोगों के मर्दों के रिश्ते होंगे वो कंडीशनल होंगे। इंशाअल्लाह वो एक मेरी बेटी से कोई अख्त करता है तो अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपनी धन दौलत सबको मेरे साथ सरेंडर करना पड़ेगा और उसे घर दामाद रहना पड़ेगा अहले बैत की खातिर। और अगर वो कोई दूसरा अख्त करे चंद शराइत के बिना पर, जो कि दूसरा अख्त भी अहले बैत में से ही जायज़ होगा, तो उस सूरत में या फिर किसी के इंतकाल की वजह से तब उससे अहले बैत की इजाज़त होगी। अगर वो करता है तो उससे अहले बैत से खारिज कर दिया जाएगा। ये चंद शराइत हैं, याद रखिए इंशाअल्लाह अल्लाह करीम, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी है अहले बैत को स्ट्रॉन्ग रखने की, यानी मेरे और मेरे घराने को ताकतवर रहती दुनिया तक। और आप लोगों को मैं अंसारुल्लाह में, मेरे ख़ास मददगारों में आप लोगों को ऑफिशियली मेरे सबऑर्डिनेट बनाकर, मेरे सेक्रेटरीज बनाकर रखूँगा, क्योंकि आपने जमात अहमदिया को पूरी दुनिया में फैलाया, मेहनत की है। आपका घराना, मेरा ग़ुलाम अहमद नाम था उनका, अहमद का ग़ुलाम यानी मेरा ग़ुलाम, शैतान का मसीह मेरा ग़ुलाम, शैतान का मसीह दज्जाल मेरा ग़ुलाम, अल्लाह के मसीहा का ग़ुलाम। और आपकी जमात को मैं वो दर्जा इंशाअल्लाह दूंगा, अल्लाह देने वाला है। लिहाजा मेरे प्यारे हुजूर मेरी इस अपील को कबूल करिए और मैं आपके कबूल करने ना कबूल करने का मोहताज नहीं। नोट कर लीजिए, सच किसी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से होता है, वो अल्लाह ही का मोहताज होता है और अल्लाह की तरफ से होता है तो किसी के सामने नहीं झुकता। अब आपसे मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकता किसी कीमत पर भी कि ठीक है आप हमको खलीफा मानते हैं, जमात अहमदिया को बेवकूफ़ ईमान वाले मानते हैं, मज़लूम मानते हैं, सब कुछ है, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि आप इनको मसीहा मान लो, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को, या मेहदी मान लो कम से कम, या मुजद्दिद मान लो। नहीं हो सकता हुजूर, सच और झूठ का मिलन नहीं हो सकता, रात और अंधेरे का मिलन नहीं हो सकता हुजूर। या तो अंधेरे को और रोशनी को एक साथ हो जाना चाहिए, और जब अंधेरा रोशनी एक साथ हो जाते हैं तो हुजूर मैं वो रोशनी हूँ और आप अंधेरा, बाकी सिर्फ रोशनी रहती है। और अगर लाइट चली जाए तो फिर अंधेरा होता, वो अलग बात है। ये ऐसा होने वाला है क्योंकि मैं और मेरे अहले बैत जब इस दुनिया से पूरे वापस अल्लाह के पास चले जाएंगे तो ये दुनिया वापस अंधेरा हो जाएगी और उन्हीं के ऊपर क़यामत कुबरा नाजिल हो जाएगी। हुजूर मेरे प्यारे हुजूर, आज तारीख़ 25 अगस्त 2020 है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे हुजूर, जमात अहमदिया, कब तक आप लोग झूठ फरेब बोलोगे? 5 करोड़ 6 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं हुए हैं आप लोग, ज़्यादा 7 करोड़ हो गए होंगे वर्ल्ड में, और कम से कम 60 लाख होंगे या 6 लाख होंगे या 7 लाख होंगे। हुजूर क्यों आप ये 160 करोड़ मुसलमानों को अपनी झूठी इज़्ज़त की खातिर, जो कि बेइज्जती है हकीकत में ईमान वालों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, उसके खातिर आप क्यों 160 करोड़ मुसलमानों को जहन्नुम की आग में झोंक रहे हैं हुजूर? क्यों अपनी इस झूठी इज़्ज़त के खातिर, झूठों से मिली, फरेबियों से मिली इज़्ज़त के खातिर क्यों 200 करोड़ ईसाइयों को जहन्नुम के रास्ते झोंक रहे हैं हुजूर? क्यों 70-90 करोड़ हिंदूस को आप जहन्नुम में झोंक रहे हैं हुजूर? क्यों आप सारी दुनिया के धैर्यों को जहन्नुम में, बुद्धिस्ट को झोंक रहे हैं हुजूर? आप बोलेंगे हम कहाँ झोंक रहे हैं, आप ही ने तो कब्जा किया हुआ है मेरे लोगों पर,
میرے ساتھیوں پر، میرے جانثاروں پر، میری دولتوں پر، میرے تحفوں پر، میرے پراپرٹیز پر. جماعت احمدیہ میری پراپرٹی ہے اور میری نہیں، یہ تو اللہ کی ہے. میں اس کا نمائندہ. کھاؤں گا پیوں گا اتنا ہی جتنا ضرورت ہے، استعمال وہی کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، خالی ہاتھ نہیں، سیدھے ہاتھ کا انبار لے کے انشاءاللہ، اعمال نامہ لے کر. اور اللہ تعالیٰ پورا مٹا دے میرا یہ لیفٹ اعمال نامہ، سب کا مومنوں کا مٹا دے، آمین. وہ انبار لے کر دنیا سے آپ کو بھی جانا ہوگا، مجھے بھی. اگر آپ ویسے 70 سال کے ہو رہے ہیں حضور، میں چاہتا ہوں کہ میری عمر بھی بہت بڑھے، میری آل اولاد کی بھی اور آپ کی بھی اور آپ کی اولاد کی. لیکن ایمان کے ساتھ میرے پیارے حضور بتائیے، مجھے چاہیے، یہ اندھی دنیا کو میں نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے، یہ پیسے کی، دولت کی، طاقت کی پجاری ہے. جب میرے ساتھ یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ پولیس کھڑی ہے، گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، کیمریز لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں چیلنجنگ کے ساتھ، تو یہ ادب سے پوچھیں گے کہ بھائی ذرا ہم تو آئے تھے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر تو کیا واقعی میں محمد مودود احمد خان صاحب جو ہے مسیح علیہ السلام ہے؟ تو ثبوت دیجئے. کیا واقعی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ مسیح دجال ہے؟ تو ثبوت دیجئے. قرآن حدیث سے ہم تو چاہتے ہیں. کیا واقعی دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دی ہے؟ تو ثبوت دیجئے. قرآن حدیث سے دینا، ہاں، اور کسی سے نہیں. اگر ہے تو بھائی کیا ہے بھائی، جان لگے، اللہ اکبر بھائی، جان لگا دیتے، ایسا کر دیتے، اللہ اکبر. ایسا کیا واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ کیا واقعی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر آ سکتے ہیں؟ آئے تو ثبوت دیجئے پلیز. ویسے جب جماعت احمدیہ جھوٹ فریب کو کامیاب بنا سکتی ہے دھوکہ دے کر، تو کیا وہ جماعت احمدیہ میرے ساتھ سچ کو سچ ثابت نہیں کر سکتی؟ کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. حضور مرزا مسرور احمد صاحب اور عہدیداران جماعت احمدیہ کے، قادیان کے، پنجاب کے، لاہور کے، سارے جہاں کے، یہ کڑوا سچ ہے کہ آپ کو بولنا ہوگا جماعت احمدیہ میں ٹھہر کر کہ اے میرے پیارے احمدی بھائیوں بہنوں، آپ کو اور آپ کے جماعت کے عہدیداران کو آپ بولیں گے میں کیسے ان کو ٹرن کر دوں. ایک زمانے سے ان کے مائنڈز کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے، اب میں کیسے ٹرن کر دوں؟ بڑا آسان ہے حضور. ان سب کو آپ لیٹرز ڈالیں اور ایک ایسا ویڈیو بنائیں اپیل کرتے ہوئے کہ ہم لوگ مسیح دجال ظاہر ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مرضی تھی. آپ خلافت کو نہ چھوڑیے، صرف آپ کو اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا اور اس عہدے پہ مجھے بٹھانا ہوگا اور میرے اسسٹنٹ بننا ہوگا آپ کو، مرزا مسرور احمد صاحب، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے پورے خاندان کو. کیونکہ آپ ایمان والے ہو جائیں گے تو میرے عزیز ہو جائیں گے نا، اللہ کے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی جماعت کے عہدیداران کو میرے اسسٹنٹس بننا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک زمانے سے جماعت کو ہینڈل کیا ہے، تو مجھے اسسٹنٹ شپ کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کی. اور پھر اللہ کا مسیحا بانڈ 007، جہاں مرد ثبوتوں کے ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ، توریت، انجیل، زبور، وید، پرانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور ہمت ہے کسی ملٹری کی، ایئر فورس کی، ترکستان کے یا پاکستان کے یا سعودی عرب کے، تو آئے میرے خلاف، یا اپنے مفتی حضرات کو بھیجو میرے پاس. یہ ضلالت کی اور عزت کی ریکارڈنگ موجود ہے ویڈیوز کے ذریعے. اس کے بعد ہم ان کو انوائٹ کریں گے اور پھر دیکھنا
सऊदी की पूरी दौलत मैं एक बैंक कायम करूँगा, अपनी जो रियासत की बैंक होगी, ख़जाने इलाही, अल्लाह का ख़जाना। सऊदी अरब के बड़े बड़े खरबपति लोग अपनी जितनी चाहे वो 20% से ज़्यादा, मेरा डिमांड 20% का होगा, मगर वो जितना चाहे दे दें इस ख़जाने में, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता। क्योंकि जन्नतों में अगर कोई महल बनाना चाहते हैं तो मैं उसको रोक नहीं सकता ना। अरबिया की सारी रियासतें अपनी दौलत इस ख़जाने इलाही में जमा कर दें और फिर इसका बंटवारा हिंदुओं में, ईसाइयों में, यहूदियों में, बुद्धिस्टों में, गरीबों में पहले होगा। उनको अमीर बनाया जाएगा। संसार में गरीब नहीं रहेगा। हर इंसान अमीर होना चाहिए, उसको रेगुलर इनकम होनी चाहिए, उसको चोरी, फरेब, डकैती, जिना की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ऐसा होगा तो फिर काम कौन करेगा? बोले काम को हम डिवाइड उनके काबिलियत की बिना पर करेंगे इंशाअल्लाह, वो अलग चीज़ है। काम दुनिया का चलेगा, अमल सालिहात। अब आप ये मत कहना कि मुझे अरबी नहीं आती, मुझे ये मत कहना कि दाढ़ी नहीं रख रहे, कुरान बराबर नहीं पढ़ सकते, नमाज में बराबर इमामत कर नहीं सकते, बराबर अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सच चाहे कितना ही कचरे में, यानी हीरा जो होता है ना असली, कितना ही मट्टी में लुत्फुत हो, उसे तराशने की ज़रूरत होती है। हुजूर उसको जो है आप बड़े कांच के पहाड़ से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन तब भी वो कांच का पहाड़ उस हीरे के सामने छोटा पड़ जाता है। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब कि मेरी अपील है आपसे, कौन है अहमदी सच्चा जो जान लगाने को तैयार है मेरे साथ, माल लगाने को तैयार है और जलील होने को तैयार है अल्लाह के रास्ते में। खुद मैं भी जलील हुआ हूँ अल्लाह के रास्ते में। आपने देखा नहीं जाहिलून ने जब हमला किया तो मुझे पागल हूँ मैं। अल्लाह ताला ने मुझसे तखय्या करवाया 2016 1 मार्च को, कल अष्टमी के दिन। ये सीन था जो अल्लाह ताला करवाया। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि पुलिस आ रही है, मैं पुलिस को फ़ोन करके आता जो लाओ क्यों। उतनी देर में उन लोगों ने वीडियोस बना लिए, कर लिए, जो भी है वो डाल दिए। आधे घंटे का सीन खदशा ख़त्म। उसके बाद मेरे वीडियो सारी दुनिया में फैले, लोगों को नेगेटिव ही सही पब्लिसिटी तो मेरी मिली। हुजूर आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे प्यारे हुजूर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के 5th खलीफा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब मसीह दज्जाल आज के फ़िरौन, ये वो इज़्ज़त है जो अल्लाह ने आपको दी। गोया ये बेइज्जती है, लेकिन इज़्ज़त तो है ना आपकी नज़र में, इसी को आप इज़्ज़त मानते हैं ना। अब इसी की कुर्बानी दे दो अल्लाह के रास्ते में। सारी जमात अहमदिया को, ओहदेदारान को जमा करिए, मीटिंग करिए और फिर डिसाइड करिए क्या करना है। उन सबको अहमदियों को लेटर लिखवाइए, लेटर भी लिखें इनके नाम के साथ, उनके पूरे तैयार करें तो बहुत हो जाएगा ना ये, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि हर अहमदी के हाथ में वो लेटर होना चाहिए कि अब कुर्बानी का वक्त असल आया है। अब आपके सारे लाइब्रेरीज, आपके सारे इल्म मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के धोखे की किताबें अब एक तारीख़ बन जाएगी, जिसका इल्म उनके पास है जमात अहमदिया के पास। लेकिन अब यहाँ से कुरान हदीस का सच्चा इल्म, जो असली मसीह महादेव के ज़रिए, वेदों पुराणों का सच्चा इल्म, इंजील तौरात ज़बूर का सच्चा इल्म उन तक पहुँचेगा मेरे ज़रिए। यहाँ से मेरी तारीख़ शुरू होगी और आपकी तारीख़ बन जाएगी, आपकी किताबें तारीख़ बन जाएगी इंशाअल्लाह। आपकी 86 किताबें मिर्ज़ा क़ादियानी साहब की, वो झगड़े सब एक तारीख़ बन जाएगी। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा इल्म हासिल करना होगा। इंस्टेंट आलिम में किताब लिख रहा हूँ, जो कि पूरी कुरान हदीस की शरीयत सिर्फ़ एक छोटी सी बुक में आ जाएगी, 100 पेजेस की इंशाअल्लाह। बस वो पढ़ते ही कोई भी आलिम हो जाएगा, मुफ्ती हो जाएगा, वो फतवा भी दे सकेगा, आलिम भी हो जाएगा, मुफ्ती भी हो जाएगा।
पूरे मसले मसाइल उसमें आ जाएंगे इंशाल्लाह। सारे हदीसों की किताबों का जो जुज़ है वो थोड़ी सी किताब में आ जाएगा। हर मेरी रियासत में हर एक अहमदी आलिम मुफ्ती होगा, क्योंकि उसके पास शरीयत इस्लाम का इल्म, मसीह महदी के निशानात, मसीह दज्जाल के निशानात, दावतुल मिनर्स के सारे किताब एक ही छोटी सी किताब में आ जाएगा। जो कि ये किताब कोई अल्लाह की तरफ से नहीं मगर अल्लाह के मसीहा की तरफ से है। मतलब सबूतों की किताब और कुरान हदीस की तायीद में, तौरात वेद कुरान इंजील ज़बूर की तायीद में, सारे मजहबों की किताब की तायीद में हुजूर पूरी जमात अहमदिया को एक जगह आपको कर लिया है आपने। अब पूरे अहदेदारान को ये सिस्टमेटिक करके मेरी कबूलियत करवाइए। आपको अल्लाह मौका दे रहा है। फ़िरौन तो इंसाफ करने वाला शख्स था, अल्लाह उसके इंसाफ से खुश था। आज आपको इंसाफ करना है। मेरा मुकदमा आपके दरबार में है हुजूर। क्यों कि दुनिया में कोई खलीफा ही मौजूद नहीं है सिवाय आपके। अब आप मसीह दज्जाल के खलीफा हैं तो खलीफा तो हैं। हदीस में यही तो जिक्र आता है। एक खलीफा के बेटों के यानी एक खलीफा के यानी 3 खलीफाओं के बाद यानी एक जो शख्स होगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बाद मिर्ज़ा नासिर अहमद, मिर्ज़ा महमूद बशीर और मिर्ज़ा ताहिर अहमद, ये 3 के इंतकाल के बाद एक हुक्मरान जिसके 3 ये लोगों के इंतकाल के बाद इख्तलाफ होगा। हालांकि बीच में हकीम नूरुद्दीन ने खिलाफत संभाली थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो बेटे तो नहीं थे ना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के। इसीलिए हुजूर आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, मैं और मेरा बेटा मोहम्मद ज़रग़ाम अली शाह, मोहम्मद ज़रग़ाम अहमद अली ख़ान शाह भी बोलता हूँ मैं उसको, अल्लाह ताला मेरे इंतकाल के बाद भी उसे मसीहा बनाने का वादा किया है। और मेरे दूसरे बच्चे मोहम्मद गज़नफ़र अहमद अली ख़ान, मोहम्मद लैतुल्लाह अहमद अली ख़ान, मोहम्मद असदुल्लाह अहमद अली ख़ान, मोहम्मद निमरुल्लाह बब्बर अहमद अली ख़ान, मोहम्मद हैदर अली ख़ान, ये सारे मेरे बच्चे। एक बेटा मेरा शबाना के पास है, महाकाली के पास, उसका मामू जो कि गुमराह है, नशे का आदी है, मुशरिक है, उसने गलती से अपना नाम लिखा लिया है मेरे बच्चे के नाम, वालिद के नाम में जहालत की इंतहा की उसने। और उसके पास मेरा बेटा, उसका नाम कलीम है। अय मसरूर अहमद साहब, और मेरी एक बेटी अनम जो कि मेरी पहली बीवी, नजम फ़ातिमा जो इस वक्त कनाडा में है, नापाक रिश्ते में मोहम्मद इमरान के पास, जो तस्दीक कर रही है रावण सीता हरण का सीन की, और उसने नापाक बच्चे उससे पैदा किए हैं। तो मेरी बेटी अनम जो गॉडेस सरस्वती है, गॉडेस एथेना है ग्रीस के मुताबिक, और मेरा बेटा हैदर जो शबाना के पास, महाकाली यानी रात वाली चीज़ के पास, शबाना के माने रात वाली चीज़ यानी काली के पास है, जो नंगे डांस पर है, नंगे काम पर है, जो बतू का अवतार है। और मेरा एक बेटा जो यशोदा के घराने में है, ज़रग़ाम, जिसे वो अली पुकारते हैं। ये सारे हम लोग अहले बैत हैं। और मेरे सारी बेटियाँ, हुस्न इलाही दुर्र शहवार, सारा बरकत इलाही, तकबीर इलाही माहम, मेरे सारे बेटियाँ नूर इलाही, जमाल इलाही, सिराज इलाही। और मैंने अनम को मेरे अपनी तरफ से नाम दिया है इल्म इलाही, जो अब तक उस तक नहीं पहुँचा है या उन्होंने चेंज नहीं किया। तो मेरे प्यारे हुजूर, ये मेरा घराना, 5 साल से मेरी बीवी मेरे पास नहीं है। हालांकि क्रिस्टीना कानिया जो कि आसिया इलाही नाम रखा, जो वापस गई हंगरी में, वो लीगली अख्त में तो है लेकिन मजबूर है, वो किडनैप्ड है अपनी फैमिली में बुदापेस्ट में। और ये निशान हैं अल्लाह के। निकाह में नजम फ़ातिमा भी आज है, लेकिन वो जो क्योंकि अल्लाह के मसीह से निकाह होने के बाद वो किसी और की बीवी नहीं बन सकती। और
क्रिस्टीना कानिया शबाना, ये मेरी बीवी होते हुए बग़ैर तलाक़ के उसने नाजायज़ रिश्ते क़ायम कर रखे हैं। ये महाकाली का सीन है जो वो कर रही है। ये लिखा हुआ है। ज़लील तो मैं भी हुआ हूँ अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि ज़लील लोगों के हाथों ज़लील हुआ हूँ। अल्लाह के हाथों तो इज़्ज़त पाई है मैंने, फ़रिश्तों के हाथों तो इज़्ज़त पाई है। ज़लील लोगों ने मुझे ज़लील किया, लेकिन आपको और आपकी जमात को इज़्ज़त वालों ने, अल्लाह के वलियों ने, सच्चे ईमान वालों ने, बेवकूफ़ ईमान वालों को, आप लोगों को ज़लील किया है। अल्लाह ने आपको ज़लील किया है। आपको इज़्ज़त तो मिली, जमात अहमदिया को ज़लील यानी जो बेवकूफ़ लोग थे, ज़लालत का शिकार थे, उनसे मिली है। क्योंकि जो एक क्रिमिनल होता है, एक ग्रुप चलाता है, संगठन, उसकी भी इज़्ज़त होती है, उसमें उसके लीडर की भी इज़्ज़त होती है, तो वैसी इज़्ज़त आप लोगों को मिली है। लेकिन एक इज़्ज़त होती है जो अल्लाह की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस होती है। पुलिस की इज़्ज़त कहीं और, इनकी इज़्ज़त कहीं और, ये दोनों का मिलन सिर्फ खिलाफ होता है एक दूसरे के। वो चाहती है पुलिस की तौबा कर ले, वही मैं भी अल्लाह की पुलिस यही चाहता हूँ। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, ये मेरा वीडियो आज तारीख़ 25 अगस्त 2020। आप लोगों से अपील है, टोल फ्री के सारे अहदेदारान से अपील है, सारे खादियान के टोल फ्री के वर्कर्स से अपील है। मैं ही हूँ अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, लेकिन मेरा नाम है मोहम्मद महदूद अहमद ख़ान। मसीहा महादेव अल्लाह का। ये हिकमत है किताब व जिहाद के हिसाब से तखिया करता हूँ, क्योंकि मैं अब कोई केसेस नहीं करना चाहता, सेल्फ डिफेंस में भी नहीं लड़ना चाहता। बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि अंधों पर अब तकलीफ़ हो। हाँ, बहुत ज़्यादा होगी तो अल्लाह ही उसका बदला लेगा। हुजूर आपसे गुजारिश है, हुजूर ये काम आप जल्द से जल्द करिए, क्योंकि अब धुआं आने वाला है। हुजूर आप बोलेंगे नहीं ये धुआं तो हो चुका है, अरे आयात कुबरा में है कि नहीं है ना, तो आने वाला है, वो देखकर ईमान लाएंगे। नहीं, उसका इंतज़ार मत करिए, वो कभी भी आने दीजिए। आपके लिए तो मैं आ गया हूँ साहिब दौलत, मैं आया हूँ दौलत की कुंजी, शोहरत, ताकत। हुजूर क्या आप मेरे असिस्टेंट बनकर जमात अहमदिया के अंदर 200 करोड़ 300 करोड़ लोग शामिल करना नहीं चाहेंगे? डंके की चोट पर, जिसे कहते हैं डिंग, डंके की चोट, डिंग, आजा, दम है तो है कोई। उस वक्त अगर कोई आपको तकलीफ दे जाहिल, तो वो कहलाएगा जालिम और आप कहलाएंगे शहुदा या गाजी। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब और जमात अहमदिया, मेरी इस अपील को कबूल करिए अल्लाह के वास्ते। अब ये मत कह देना फिर से कि देखो भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ही मसीह अलैहिस्सलाम है, मत कह देना मसीह दज्जाल है, अल्लाह की निशानी ज़ाहिर हुई है कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसने हमें ज़लील किया, तो क्या हुआ? इज़्ज़त भी वही देने वाला है, ज़िल्लत भी वही देने वाला है। हम ठीक खुला बोल रहे हैं। हाँ, अब तो हमें अल्लाह इज़्ज़त देगा ना, ऐसे बोलिए। तो जब अल्लाह इज़्ज़त देगा तो आप इज़्ज़त पाएंगे। आपको किस चीज़ से मोहब्बत है? आप ओहदे पे रहना चाहते हैं खिलाफत के, तो मेरे असिस्टेंट बन के रहिए। खिलाफत पे मेरे सबऑर्डिनेट बन के रहिए, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहता है। लेकिन हक़ बोलिए, पहले कबूल करिए। जमात अहमदिया को पाकर आपको दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, जितनी चाहिए लीजिए, ख़ज़ाने इलाही से लीजिए। किस लिए चाहिए? जिना के लिए तो नहीं चाहिए आपको, शराब के लिए तो नहीं चाहिए, ड्रग्स के लिए तो नहीं चाहिए। किस लिए चाहिए? अल्लाह का काम करने के लिए चाहिए, ले लीजिए, उसका अकाउंट सबमिट कर दीजिए अकाउंट्स ऑफिस में। क्या चाहिए आपको? शादी करना है और उपचार करना है, कर लीजिए लेकर,
नहीं है पैसा, कर लीजिए। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास भी इंडस्ट्रीज है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, अगर ज़रूरत हो तो ले लेना, नहीं तो आपके पास से दे देना मेरे ख़ज़ाने इलाही में। वैसे तो मेरे नाम से बहुत से दौलतें आपने पहले उसूल कर ली हैं तोहफ़ों की शक्ल में। अब आप बोलेंगे वो तोहफ़े मैंने जमात में लगा दिए, लेकिन मेरे से पूछ के लगाए क्या? अब मैं आ गया हूँ, वो तोहफ़े मेरा हक़ है, मैं चाहे उसको लेकर जमात में लगाऊं या अल्लाह के रास्ते में लगाऊं या कचरे में फेंकूं, जो मेरा हक़ है, और किसी का हक़ खाना आपका हक़ नहीं। आप मसीह अलैहिस्सलाम के नाम से, असली मसीह के नाम से लोगों को धोखा देकर तोहफ़े कबूल कर रहे हैं। मेरे तोहफ़े, मेरे मासूम बच्चे खाने को तरस रहे हैं, कपड़े को तरस रहे हैं, मैं तरस रहा हूँ, और आप हमारे नाम का खा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए हुजूर, हम लोग तकलीफ़ों में और आप हमारे नाम का खाकर क्या जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह ताला ऐसों को? कभी नहीं। हुजूर मैं तो चाहता हूँ आप भी और आपकी सारी जमात मेरे साथ जन्नत में चले। अल्लाह मुझे मेरी आल औलाद को सेहत भी दे, ताकत भी दे, इज़्ज़त भी दे, जायज़ शोहरत भी दे, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतानी वसवसों से, उसके करीब आने से भी और उसके गुमराह करने से भी और उसके शर से। ऐ अल्लाह हम आपके कामिल कलमात की पनाह में आते हैं हर वो चीज़ के शर से जो आपने पैदा की परवरदिगार। ये दुआ मेरे लिए, मेरी आल औलादों के लिए, और जो ईमान लाए उनके लिए, उनकी आल औलादों के लिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई ज़िल्ली नबी, ना कोई बुरोज़ी नबी, ना कोई आसमान से नबी, ना कोई ज़मीन से नबी। नोट कर लीजिए, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं मसीह महदी महादेव कल की अवतार अल्लाह ताला का भेजा गया हुआ खासिद हूँ। हुजूर अल्लाह के वास्ते इसमें पॉज करने की फैसिलिटी है, इसलिए मेरे वीडियो में पॉज आपको नज़र भी आ जाएगा कि 1 सेकंड का जर्क आपको, यानी माइक्रोस मिनी सेकंड का जर्क नज़र आ जाएगा। लेकिन जो माशाल्लाह से जितने नेचुरल मेरे वीडियोस हैं मिरेकल्स वाले, वो विदाउट पॉज हैं, विदाउट एनी जर्क्स हैं, नेचुरल हैं। अल्लाह की कसम कोई इसमें चाल नहीं, मैंने कभी शिरक नहीं किया लाइफ में, और अल्लाह की पनाह चाहता हूँ मैं हर किस्म के शिरक से, चाहे वो छुपा हुआ हो या ज़ाहिरी हो। लेकिन चंद बातें एक मुजाहिद को जायज़ हो जाती हैं, कुछ चंद हालात में वो सारे चीज़ें इस्तेमाल अल्लाह ताला करवाया। अल्लाहु अकबर। हुजूर आप बोलेंगे कि भाई हम आपको अपना मसीहा कैसे मान लें, दाढ़ी कहाँ है, टी शर्ट पहने हो, पैंट शर्ट पहने हो, तो ठीक है, पैंट में थोड़ा सा नुक्स होता है मुझे मालूम। पैंट में पीछे से हिप्स नज़र आते हैं, सामने से शर्मगाहों के हिस्से नज़र आते हैं। ये तकलीफ़ तो मैं जानता हूँ, मैंने पैंट एक नई डिज़ाइन की है मेरे लिए और सारे मोमिनों के लिए। वो पैंट में सामने का हिस्से तक जो है ना, एक ऐसा अच्छा स्टाइलिश कपड़ा होगा जो आपके शर्मगाह नज़र नहीं आएंगे और पीछे की हिप्स भी नज़र नहीं आएंगे। वैसा इंशाल्लाह वो लागू करता हूँ, वही पहनूँगा मैं इंशाल्लाह। और जब बैठते भी हैं तो उस अंदाज से वो ऐसा बहुत ही अदब से कि ख़राब नहीं लग रही। नहीं आप बोलेंगे शेरवानी पहन लो, अरे भाई शेरवानी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं पहनी, वो भी तो जो है गदरा पहनते थे, तो गदरे में भी जो है ना जिस्म के नज़र आता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। मैं इस तरीके से इसको इंशाल्लाह डिज़ाइन करा हूँ, समझ रहे हैं हुजूर। अब आप बोलेंगे दाढ़ी नहीं है कैसे मान लें, लोग क्या कहेंगे, सऊदी प्रिंस क्या कहेगा, सलमान किंग क्या कहेगा, फिल्म स्टार्स क्या कहेंगे। भाई वो अल्लाह की आयत से बढ़ गए क्या, उनको भी कबूल करना होगा। जैसा भी मैं हूँ वैसा ही सच हूँ अल्लाह की तरफ से। मेरे प्यारे हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, पूरे खादिम जमात अहमदिया को अपील करता हूँ, पूरी जमात अहमदिया के अहदेदारान को अपील करता हूँ, मेरा ज़हूर
1991 सफ़ेद मीनारा के पास बने बनाए मस्जिद अक्सा कादियान पंजाब में हुआ। मीनारतुल मसीह के पास फजर के वक्त जब मिर्ज़ा ताहिर अहमद सालाना जलसा मना रहे थे पहुँचे। 1991 में सफ़ेद गधे पर एरोप्लेन में होकर सवार, गर्मी सर्दियों का मौसम, त्याल-सी चादरें ओढ़े लोग और मस्जिद अक्सा में 400 औरतें 800 मर्द तकरीबन मौजूद। ये वाक़या हुआ 1991 में और मैं पहुंचा ट्रेन के कोयले इंजन पर सवार होकर बटाला से कादियान तक, और उससे पहले ट्रेन हैदराबाद से। ये हैदराबाद का जिक्र तौरात में आता है कि बब्बर शेर निकल कर आया। कहाँ से निकल के आया? जहाँ बब्बर शेर रहता है उसको क्या कहते हैं? हैदराबाद, जबकि वहाँ पे हैदराबाद नहीं है। तो बब्बर शेर कहाँ से आया? निकल के हैदराबाद से आया। कौन से हैदराबाद? वहाँ तो हैदराबाद है नहीं। बब्बर शेर आया निकल के कहाँ से? जहाँ बब्बर शेर रहता है। कहाँ बब्बर शेर रहता है? जहाँ बब्बर शेर निकल के आया। बब्बर शेर कहाँ से निकल के आया? जहाँ वो रहता है। अरे उसका जगह का नाम क्या है? जहाँ वो रहता है बब्बर शेर। क्या मतलब? हैदराबाद। 2 एस्दरास चैप्टर नंबर 11 में इसका जिक्र है। हुजूर, आप अगर देखें चैप्टर नंबर 11 30 से वर्सेस अगर पढ़ें 30, 35, 36, 37, 34, 35 सारे पढ़ें 30 से लेकर आप लास्ट तक है तो देख लें। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, 2 जर्द चादरों से मुराद, जब गंदुमी मसीहा जब जवान हो जाता है तो 2 जर्द चादरों में लिपटा होता है, वो था। 2 फरिश्तों से मुराद 2 लड़के थे, आदिल और सोहेल, जो मेरे साथ चले थे, मेरी फूफी सादिया के बच्चे, जो पांडवों की बीवी यानी पांडवों की माँ और पांडव की बीवी यानी जमील जो इंतकाल हो गया, वो भी रीइंकारनेट हुई है 5 पांडव की माँ। मेरी जो पिछले जन्म में कुंती थी, इस बार सादिया। कुंती भी 5 लफ्ज़, सादिया भी 5 के, SADIAKUNTI, समझ रहे हैं? तो ये सारे रीइंकारनेशन हुए हैं। पहुंचा मैं कादियान पंजाब, वहाँ मेरा ज़हूर होता है 18 साल की उम्र में। वो वीडियोज़ आपके पास मौजूद है और आपने उसे हाईलाइट भी किया है आपकी जमात ने, जब मुझे नहीं मालूम था। ये तो मुझे 2020 में वीडियो को ज़रा गौर से देखने से पता चला कि आपके जो लफ्ज़ हैं वो यार हमारे पास है, जो आप बता रहे हैं वो यार हमारे पास है। उसमें लिखा है अजवज़ल कुछ ऐसे ही है, जो आपका 100 सालाना वीडियो है, उसमें आपने मेरी तरफ हाईलाइट किया है। तो आप और आपके मिर्ज़ा ताहिर अहमद मुझे पहचान सके, आपके लोग मुझे जान लिए थे कि मैं आ गया हूँ। और एक बार मियाँ साहब रास्ते में मेरे वालिद के मिले थे, 1996 की बात है, 1993 की बात है सॉरी, कि वो रास्ते में मिलकर मेरे वालिद को बोले कि ये लड़का बहुत काम कर रहा था, बहुत वर्क कर रहा था। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज थे। तो आपकी जमात को पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कि मैं ही असली मसीह महादेव हूँ। लिहाजा हुजूर, आपकी जमात में ईमान वाले हैं, लेकिन वो इल्म में बढ़कर हैं। अल्लाह के नज़दीक बदतरीन वो कौम है जो अपने अक़ल को इस्तेमाल नहीं करती। तो ये बात तो आज गैर अहमदियों में भी लागू है और ये बात आप लोगों पे भी लागू है। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में 2 आप बढ़ के हैं। ईसा इब्न मरियम का इंतकाल मानते हैं, ईसा इब्न मरियम में मेहदी अलैहिस्सलाम मानते हैं, इसीलिए आपका दर्जा ज़रा बड़ा हो गया आम लोगों से। इसीलिए ईमान वालों में आप लोग ईमान वाले हैं इस वक्त। दूसरे लोग हैं ईमान पे कायम नहीं है, अकीदे पे हैं, लेकिन फिर भी पूरा उसी तरीक़े से जमात अहमदिया और बेवकूफ़ ईमान वालों की जमात है, जिन्होंने मसीह दज्जाल को मसीहा कहा, सोने की दुकान समझकर पीतल की दुकान में जाके अपनी सारी दौलत लगा दी। अब उसी दुकान के अंदर से निकल के आया असली ओनर, सोने का मालिक, और बोल रहा है कि मैं आ गया। हुजूर, मेरी इस अपील को सारे अहमदी लोग देखें, मैं आपके लिए आया हूँ। तो क्या आप इस झूठ फरेब को नहीं ठुकराएंगे, इस बीमारी को अपने आप से नहीं निकालेंगे? आप बोलेंगे कैसे निकालें, इतनी जगह हमने कुरान के ट्रांसलेशंस कर दिए हैं, कितने करोड़ के किए हैं, कितने खरब रुपए के किए हैं। देखो ये दौलत दुनिया की IOC कंट्रीज जो है, 57 इस्लामिक कंट्रीज की दौलत देखो, इसके सामने 10% भी नहीं किया है आपने
وہ ساری دولت سے میں اپنا خزانہ الہی بھر دوں گا، اور ہر بلیور امیر رہے گا، اس کے پاس موبائل فون، ایک گاڑی، ایک گھر، معقول آمدنی، رزق کی فراہمی ہر حال میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ساری دولت کو ایکولائز کرنا میرا کام ہے، اور یہ سسٹمیٹک کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے حضور، آپ سے گزارش کرتا ہوں، جماعت احمدیہ دیر مت کریے۔ جب یہ آپ بولیں گے کہ اللہ ہم کو ہدایت کرے گا تو ہم مانیں گے، یہ میرا اپیل کرنا ہی ہدایت ہے، کیونکہ میں صاحب ہدایت ہوں، اللہ کی ہدایت پر ہی آپ کو میسیج دے رہا ہوں۔ قبول کریے یہ ضلالت اللہ کے راستے میں، جو کہ سچ ہے۔ آپ بولتے ہیں نا سچ ہے، تو سچ قبول کریے۔ آپ بولیں گے یہ دنیا کی دولت کی لالچ ہم کو بتا رہا ہے، ارے میری دولت لے کر آپ بیٹھے ہیں اور مجھے بول رہے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حضور مرزا مسرور احمد صاحب، اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے اپیل کر رہا ہوں، آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں، قبول کریے، میرے ساتھ ہو جائیے، بیعت کریے میرے جماعت، پوری جماعت احمدیہ کے ساتھ۔ بے عزتی کے تخت سے اتر جائیے، کیونکہ وہ تخت میرا ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں، اور عزت کے تخت پہ میرے ساتھ بیٹھیے، میرے سبارڈینیٹ، میرے مددگار بن کے، اور جماعت احمدیہ کو اس اندھیرے سے نکالنے میں میری مدد کیجیے، اور پھر اس کو روشنی سے بھر کے سارے جہاں کو مجھے روشن کرنے دیجیے۔ میرے پیارے حضور، میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کے جماعت میں جنما انعام ہوں۔ اتنے جھوٹے دعوے دار آپ کے پاس آئے، وہ سب مرید تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے، اور وہ ایجڈ تھے، پڑھے لکھے تھے۔ میں تو معصوم بچہ 18 سال کا ظاہر ہوتا ہوں، اور کچھ بھی علم نہیں رکھتا، امیوں میں سے ایسے دیکھتے ہوئے اس معصوم بچے کو آپ ذلیل چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، یعنی مجھے اور میری آل اولاد کو۔ انشاءاللہ میری آل اولاد بھی ایمان پر قائم رہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری آل اولاد بھی ایمان پر قائم رہے، اور مجھے اللہ صحت دے، بڑی عمر دے، طاقت دے، اور داؤد علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، اس سے بھی زیادہ مجھے اللہ عمر دے انشاءاللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی، وہ عمر بھی مجھے تصدیق کرائے، اور داؤد علیہ السلام کی عمر بھی تصدیق کرائے اللہ تعالیٰ، اور مجھے اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو سکے تو نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ عمر عطا کرے، آدم علیہ السلام کی بھی عمر مجھے عطا کرے، اور میری آل اولاد کو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے، تاکہ میں اتنے تجربوں کے ساتھ، اتنے نشانیوں کے ساتھ، جتنا ہو سکتا ہے اس دنیا میں اللہ کا اوم کا، یعنی ہری اوم کا، نرگنا برہما مہا وشنو، یعنی اللہ کا، الوہم کا نام ہر جگہ کروں، اور ہر جگہ دنیا میں اس کے لوگ شکر گزار ہو اور راحتیں ہو۔ یہ میرا ارمان ہے، یہ میرا ایمبیشن ہے، یہ میری خواہش ہے، اور اللہ ہی اس کو پورا کرے گا۔ الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ سارے جہاں میں قائم کرے گا۔ الصلاۃ یعنی ہر چیز میں الصلاۃ ہوتی ہے، نماز قائم کرنا ہے، ہر عمل میں الصلاۃ ہو۔ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ ایک جنت کی طرح بنا دے رہتی دنیا تک، اور کرے گا انشاءاللہ، اللہ کے وعدے غلط نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ تو میرے پیارے حضور مرزا مسرور احمد صاحب اور جماعت احمدیہ، یہ پورا ویڈیو آپ دیکھے ہوں گے، اور دیکھنا چاہیے آپ کو، آپ سے اپیل کر رہا ہوں میں۔ جماعت احمدیہ کے پاس ہی اصلی مسیح موعود، یعنی اصلی مسیح مہدیو کی عزت ہے، کیونکہ وہ عزت کرتے آئے ہیں ایک زمانے سے، پیتل کی، وہ سونے کی عزت کرنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا آپ پوری جماعت احمدیہ مل کر یہ اعلان کریں، اور پورے احمدیوں کو آپ ساتھ لے لیں، میرے ساتھ کر دیں، اور پھر یہ میری جو میں اور میرے اہل گھرانے کی اہل بیت ہے، یہ ہولی رائل فیملی کہلائے گی انشاءاللہ، اہل بیت، جو ہم خادم ہوں گے اس سرزمین پہ، خادم اول، اللہ تعالیٰ کے خادم اول، یعنی الوہم اوم کے خادم اول گھرانہ، اور اس کی پوری سیکیورٹی، ان کو پوری طریقے سے علم، ان کو پوری طریقے سے دولتیں، سہولتیں فراہم کرنا فرض ہوگا ہر مسلم پہ، تبھی تو
झाड़ मजबूत होगा, घना होगा, तभी साया भी बेहतरीन होगा, फल भी बहुत अच्छे लगेंगे। हुजूर मेरे अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला कबूल करे। अगर मेरे प्यारे हुजूर मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब, एक तरफ आप बोलते हैं हमको मसीह दज्जाल कहता है, एक तरफ प्यारे हुजूर भी कहता है, हमारी खिलाफत को भी कबूल करता है, तो है ना आपकी खिलाफत? यह तो लीला है। आखिर में क्लाइमैक्स में विलन भी जब दोस्त हो जाता है, सरेंडर कर देता है हीरो को, तो वो हीरो के साथ भी साइड हीरो हो जाता है, वो विलन बाकी नहीं रहता ना हुजूर। अपनी जमात के साथ सरेंडर करिए, मुझे ये दौलतें मेरी है, मुझे अता करिए। करने वाला अल्लाह है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, इंशाअल्लाह वही करेगा। आपसे गुजारिश है, आज 25 अगस्त 2020 को ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। अल्लाहु अकबर।